हैव सेंड द लिंक ऑलरेडी. एक सेकंड रुक जाओ यार, वो बेचारा नीचे ना एक बच्चा का वेट कर रहा है. न्यू स्टूडेंट इज ज्वाइनिंग टुडे, सो आई डोंट वांट. बाप रे बाप. कौन? अच्छा, नई बच्ची तन्वी भी ज्वाइन किया आज. हाँ, आई रिमेम्बर. अच्छा, मैं चालू करता हूँ. सो फॉर तन्वी एंड यशवी and anybody who is joining us today for the first time, we have done 4 classes. तो 4 classes का मैं आपको एक बार अपडेट दे देता हूँ. इट्स योर फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड डिमांड. गुड न्यूज़, आपके पूरे सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर यही है. मतलब ये इतना आसान चैप्टर है कि ये क्लास 10 में पढ़ाया जाता है, और 10 में ये एग्जैक्टली सेम ही पढ़ाया जाता है विद अ लिटिल बिट ट्वीक्स हियर एंड देयर. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, बट येस इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. How do you do that if you want to do it? We will be repeating it in some time, but till we do, there are backup classes for everything that we do in class. तो वो मैं 4 क्लासेस तन्वी को भी भेज दूंगा, आपको भी भेज दूंगा, वो जो नया बच्चा आज आ रहा है उसको भी भेज दूंगा. ट्राई टू फिनिश दैट बिफोर योर नेक्स्ट वीक डे 1. कल के लिए आपको नहीं चाहिए, आज के लिए भी नहीं चाहिए. टुडेज डिस्कशन यू डोंट नीड द फर्स्ट चैप्टर. But from the first chapter you need one thing. You need something known as the law of demand. So there is a law that states that if other things are kept constant, मतलब other things में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी इनकम में चेंज नहीं होगा, your taste and preferences will not change, price of related goods will not change, your taste and preferences will not change, there is no change in your expectations, there is no change in the government policy, there is no change in climatic factors. If all those things are kept constant, we say that the law of demand works with price falling and quantity demanded rising, and price rises, quantity demanded falls. क्या नाम है सर? Clinton, right? Clinton, I have immense respect for you. You are coming from Vedic village. How much time did it take for you to come? 1 hour. Vedic में कहाँ रहते हैं सर? मेरा भी एक फ्लैट है उधर ग्रीन टेक में. मेन वेदिक ग्रीन टेक के बाहर वाला, तो उधर है आपका. प्राइस फॉल क्यूडी राइज, प्राइस राइज क्यूडी फॉल. तो दैट इज द ओनली थिंग क्लिंटन यू विल नीड टुडे, बिकॉज इन द लास्ट 4 क्लासेस वी डिड अ चैप्टर कॉल्ड द डिमांड एंड द लॉ ऑफ डिमांड. टुडेज क्लास, योर कॉन्ट्रीब्यूशन और योर थिंग दैट यू नीड टुडे फॉर अंडरस्टैंडिंग टुडेज क्लास इज दिस लॉ. द लॉ इज प्रिटी सिंपल, but the law is not about prices high or low. Please don't think that we are saying that expensive things are sold less and excuse me, cheap things are sold more. The law is not talking about that. The law is talking about a rise and a fall. महंगा सस्ता का बात ही नहीं है, दाम बढ़ने और गिरने पे बातें हैं. We are talking about a consequential law, not being high or low. We are talking about rise and fall. So when the price of, let's say, a Starbucks coffee rises, जितना लोग स्टारबक्स पहले जाते थे रिलेटिवली कम आएगा. इफ़ द प्राइस ऑफ द स्टारबक्स कॉफ़ी फॉल, जितने लोग पहले जाते थे उससे ज़्यादा जाएंगे. थिंक अबाउट इट, इवन इफ दे रिड्यूस द प्राइसेस बाय 10-20%, स्टारबक्स इज स्टिल एन एक्सपेंसिव कॉफ़ी. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गुड्स बीइंग हाई प्राइस्ड और लो प्राइस्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स का प्राइस राइजिंग एंड फॉलिंग. सो कॉन्सिक्वेंस है कि एक चीज़ चेंज होने पर आपका क्वांटिटी में रिएक्शन आता है. दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड. ऑब्वियसली देर आर एक्सेप्शंस टू दिस. There are exceptions to laws of physics also. Gravity, like a universal law, like gravity has certain exception, like space. Then, you know, if I throw you from, you know, a very high altitude in a box, you feel gravity differently. है ना? I'm just saying that laws which are universal in nature have exceptions. ये तो एक observatory law है regarding economics. तो इसमें तो exception है ही. Regarding show of goods which are called articles of snob appeal, generally we want to buy more of those goods when the prices of those goods rise. Sorry, Giffen goods, necessities, Veblen effect,
है ना. These were things that we have discussed in the first 4 classes. My discussion is not that. I want Tanvi, Clinton, and Yashvi, to understand today's class without knowing demand. But one contribution from your side, ma'am, is that you should know what the law of demand states. That's it. और कुछ नहीं चाहिए मेरे को कि दाम गिरने पर क्वांटिटी बढ़ेगा और दाम बढ़ने पर क्वांटिटी कमेगा. That is the only thing you need for today's discussion. Then what is today's discussion? Let me start with asking you a very simple question. Law of demand is working. It is not an exception. It is not a necessity. It is not an article of snob opinion. Think about 4 to 5 commodities you are using on a daily basis, Chirag. Let me start it off so that you understand where I am heading. Maybe, sir, you use a toothpaste. You have chocolates sometimes. Anything else, sir? Garments, clothes, internet services. Agreed? And I think, what did you say? Salt. Please assume that all of these commodities का prices have gone down. What does the law of demand state? आप ज़्यादा खरीदोगे. That is what the law is, right? Perfectly clear that अगर ये चीज़ों का prices कम हो जाता है, if the price of a commodity falls, you tend to buy more of this. If that is true, my question is, श्रेष्ठ, अगर टूथपेस्ट का दाम 10% से गिरता है, क्या ज़रूरी है exactly आप टूथपेस्ट की कंजम्पशन 10% से ही बढ़ाओगे? क्या ज़रूरी है कि जो रिएक्शन आएगा, मान लीजिए सब 10% से फॉल करता है, एवरीथिंग फॉल्स बाय 10%, इज इट मैंडेटरी नेसेसरी दैट ऑल ऑफ द कमोडिटीज विल राइज बाय 10% एग्जैक्टली, or will it be that they will increase by the same proportion, or some things might increase more than some things might increase less? For example, if you ask me, if the price of toothpaste falls, I am still going to brush my teeth once a day or twice a day, whatever I do. Maybe 1 or 2 times I do it extra because थोड़ा सस्ता हो गया. You won't see a exponential or a drastic change in my consumption. But if you can see my physique and everything, if this happens, I might go crazy. दाम चॉकलेट का गिर जाने पर कंजम्पशन ऑफ चॉकलेट्स काफ़ी बढ़ जाता है. बट आज तक का बेस्ट एग्जाम्पल मेरे को कोई एक बच्चा दिया है. Anybody who goes to the gym will be able to relate to this better. He said whey protein. He said when the prices of whey protein fall, if I have whey protein once a day, I might have it twice or thrice a day. So and I might not even buy whey protein if the prices increase. It's an expensive thing. आप में से कोई जाता है जिम? आप जाते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं? कौन सा वे लेते हैं? मैं 2-3 आपको बड़े ब्रांड बताता हूँ जो काफ़ी महंगे महंगे हैं. डायमेटाइज करके एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ऑन बोल के एक ब्रांड है, और एक मसल टेक है. अब ये लोग का जो 1 kg का डब्बा है वो आते ही 6,500-7 हज़ार रुपये का है ना. 6-7 का रेंज का है. ये तीनों इसी रेंज में आ जाते हैं, कोई 5-5.5, कोई 6-7 का. सो अगर इनकी प्राइसेस कम हो जाती हैं तो एज अ स्टूडेंट, चाहे या मी ऑल्सो, अगर प्राइसेस कम हो जाती है तो मेरे को लगता है यार आई कैन हैव मे बी 2 स्कूप्स नाउ, कि ठीक है सस्ता है मैं ज़्यादा खरीद लेता हूँ. और अगर ये महंगी हो जाती हैं तो मैं एक कम कर देता हूँ, या 2 बार दिन में लेता हूँ तो एक पे आ जाऊँगा. यहाँ फ़र्क पड़ेगा. कुछ चीज़ों पे आपका रिएक्शन ज़्यादा आएगा, कुछ चीज़ों पे आपका रिएक्शन कम आएगा. दैट इज़ व्हाट आवर डिस्कशन इज. फॉर एग्जाम्पल, उत्कर्ष, वुड यू कंसिडर दिस कमोडिटी इलास्टिक? ये इलास्टिक है कि रिजिड है? रिजिड है, इलास्टिक नहीं है. इलास्टिक का मतलब, अगर आप इफ यू ब्रेक डाउन द ग्रामर पार्ट एंड द वर्ड मीनिंग, एनीथिंग दैट रिस्पॉन्ड्स टू फोर्स, anything that responds to force and has a reaction is elastic. Elastic means flexible. If you now think of synonyms of elastic, flexible, sensitive. So those commodities that are going to be sensitive to price changes are going to be called elastic commodities. And those commodities that are not going to be sensitive to price changes are going to be inelastic commodities. For example, clothes is elastic. Very highly elastic commodity, sir. Salt is an inelastic commodity. Clothes का तो selling ही ऐसा है. Buy 1 10%, buy 2 20%, buy 3 50%. कि भाई हम आपको स्विगी पूरा टाइम ये करता है आपके साथ, है ना.
एक घटिया सा जोक भी डाला था मैंने इंस्टाग्राम पे, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं। वो आपको बोले जाएगा कि ऐड 50 रुपीज़ का कोई सामान, हम आपको जंबो वाला कूपन लगाने दे देंगे। इफ़ यू ऐड मोर थिंग्स इन टू योर कार्ट, वी विल अलाउ यू टू बाय दिस मोर। Blinkit, you know, it reduces waves of its delivery fee if you go beyond a certain value, because they know these goods are, they've given you a whole performer of commodities कि क्या चाहिए भाई, ग्रोसरी से लेकर पूजा का सामान, now they are selling books on Blinkit, सब बेच रहा है, बोल रहा है कि आप, मैं थोड़ा दाम गिराऊंगा, आप ज़्यादा खरीदो। कमोडिटीज इलास्टिक का मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल, इट्स लाइक अ रिचुअल टू मी, है ना। देर आर पीपल हु आर सेंसिटिव टू थिंग्स एंड हु आर नॉट सेंसिटिव टू थिंग्स। आई ऑलवेज बिलीव इन दिस दैट everybody is differently wired and every person in this world is absolutely a different personality, है ना। अगर मैं भगवान न करे चिराग आपको 2 थप्पड़ मारूं और चिराग बोलते हैं ठीक है भैया, आप भैया हैं, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, और कुछ नहीं करता, he does nothing, ए ये नहीं करो प्लीज, ये सब मत करिए। ऑन दी अदर हैंड, मान लीजिए मैं ध्रुव के पास गया, मैंने ध्रुव को पहले हल्का से ऐसे, जैसे प्रतिजेश ने प्यार से मारा, ध्रुव ने क्या किया, मेरा गर्दन काट दिया। नाउ इज इट नॉट, मतलब एन एक्सट्रीम रिएक्शन? आई एम सेइंग प्लीज अंडरस्टैंड सर, योर इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम रिएक्शन। अगर कोई आपको 2 थप्पड़ या 5 थप्पड़ मारता है और आप कुछ नहीं करते हैं, वो भी एक हाइपोथीसिस है। जीवन में अगर आपको कोई भी मारेगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद आपका हाथ उठेगा, कोई भी हो, है ना। मैं मतलब नॉट गेटिंग इनटू हु दिस पर्सन इज, आफ्टर अ पॉइंट हुएवर इट इज, यू विल फाइट बैक, है ना। दैट इज, अब चिराग इज सेइंग दैट ही विल नेवर फाइट बैक, दैट इज एन एक्सट्रीम रिएक्शन एंड सो इज ध्रुव's रिएक्शन। बट द रियलिटी ऑफ पीपल इज ओनली 3 things. If I go and hits, let's say Yug, let's say 6 slaps, option number 1, he hits me back exactly 6 slaps, 6 के बदले 6। लेकिन मान लीजिए मैं कृष्णा को मारा 6 थप्पड़, कृष्णा आके मेरे को 12 थप्पड़ मार के चला गया, या 6 से ज़्यादा, 7 भी 6 से ज़्यादा है, 12 भी 6 से ज़्यादा है। मान लीजिए मैं महत्व को 6 थप्पड़ मारा, आउट ऑफ रिस्पेक्ट महत्व आके बोला भैया हैं, 5 मारेंगे, मारेंगे तो पक्का, फालतू में कोई आके मार के चला जाएगा, मजाक का बात है क्या, है ना। रिएक्शन इज स्टिल देयर, बट वेदर इट इज गोइंग टू बी एन सेंसिटिव रिएक्शन और एन इनसेंसिटिव रिएक्शन, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, एंड यू एज अ स्टूडेंट शुड नो इट एट अ वेरी अर्ली एज that this is one of the biggest tools in businesses to capture the market. If you can understand if your product is elastic or inelastic, अगर आप ये पकड़ लिए इस बात को, आपका ना सर मार्केट कैप्चर करने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, आई हैव बीन थिंकिंग, इफ आई कैन बी ऑन अ 1-to-1 level with you guys, I have been thinking that in the last 1.5 years ना, I have stagnated. मतलब मेरे को लग रहा है मैं अपने इस करियर पे आ गया हूँ इस पॉइंट पे कि इसके बियॉन्ड मैं और नहीं बढ़ा पाऊंगा। सो मेरे को लगता है द नेक्स्ट वे टू गो अबाउट इज ऑनलाइन क्लासेस, है ना। जैसे तन्वी इज ज्वाइनिंग एंड वी वर डिस्कसिंग, ध्रुव आपके आने से पहले द अकाउंट्स क्लास वी हैव स्टूडेंट्स डूइंग ऑनलाइन फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया राइट नाउ, लिटरली, मतलब साउथ से, बैंगलोर से हैं, बिहार से कर रहे हैं, मुंबई से कर रहे हैं, जयपुर से कर रहे हैं, कोटा से कर रहे हैं। मतलब the only way to go about next level would be online, and that is why you might be seeing that I'm trying to increase my social media presence. नहीं तो मेरे को इतना समय नहीं है कि मैं 2 बजे तक बैठ के रील बनाऊं, ठीक है, इस चीज़ का मजाक उड़ाता था मैं, but this is what the demand of the hour is. To people to know about me, I have to get into the social media aspect, and what I am thinking is, because a lot of people will not want to do online, I am going to slash my fees by 50% for online students. अब वो देखकर शायद तन्वी जैसे बच्चे या क्लिंटन जैसे बच्चे वो बोलेंगे यार आई वुड लाइक टू ट्राई ऑनलाइन वंस, मे बी इट सूट्स मी, मे बी इट डजंट सूट मी। लेकिन सोच कर देखिए, अगर मैं ये सेम ऑप्शन आपको मैथ के लिए दूं, आप बोलेंगे मैं नहीं कर पाऊंगा ऑनलाइन मैथ, इट इज अ हाईली इनइलास्टिक कमोडिटी। कोई मतलब मेरे लिए, आई एम अ स्टूडेंट लाइक मी, आई वुड नेवर बी एबल टू डू मैथ ऑनलाइन, नहीं होगा मेरे से, सच बोल रहा हूँ मैं।
I need someone sitting in front of me, telling me what to do, whether it is in a batch, whether it is in a group, I don't care. But somebody has to be guiding me, क्योंकि मेरा मन नहीं करता मैथ करने का. Now I don't like the subject. I am being as honest as possible. तो मतलब आपके लिए वो लाइक एकदम रिजिड है, इनइलास्टिक कमोडिटी है. किसी का मैथ अगर स्ट्रांग है उसके लिए उसके लिए इलास्टिक है. बहुत बच्चे अकाउंट्स नहीं करना चाहते हैं ऑनलाइन, इको करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उनके लिए इनइलास्टिक है अकाउंट्स, पर इलास्टिक है इकोनॉमिक्स. Elasticity will help you understand. This is what I did in the beginning of my career. A very less percentage of people know this, that I started teaching in the year 2012 and I only used to teach economics. I was an economics teacher for 2 years of my life. Only economics. But then I realized to increase the market, I will have to enter into accountancy as well. पर मैंने गेम खेला, बोला आप अकाउंट्स इको पढ़ते हो ना सब मेरे से, अब अगर अकाउंट्स ज्वाइन करोगे 300 रुपये लगेगा. और उस टाइम पे मेरी फीस 800 रुपये थी. मैंने बोला आप मेरे साथ अकाउंट्स को दोनों पढ़ो, 1100 में हो जाएगा. सेम आज भी चल रहा है, पर द डिस्टेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग नाउ. यू गिव मी 1500 फॉर वन, 2200 फॉर बोथ. आई रियलाइज दैट मे बी Yashvi when she joins, Yashvi, I am not trying to sell my product to you, please understand. Maybe when the prices are dropped, Yashvi will be inclined to try those classes at least once. Maybe she doesn't like it, but at least she would like to know about those classes, because it's a highly elastic commodity. Another inelastic commodity, you know, if I tell you that I am going to give you commerce tuition for 200 rupees, भैया 200 रुपये में भी नहीं चाहिए. कॉमर्स का ट्यूशन कौन लेता है? सोच कर देखिए. Even if I am trying to sell it to you at 100 rupees per month, you will say it is not needed. बट किसी के अगर वो इनइलास्टिक है तो वो तो लेगा, नहीं लेगा ना. इसीलिए अगर मान What is the percentage of people who are going to find commerce tuition elastic? सोच कर देख. वेरी लेस, बट Very less. होगा तो देख, होगा. People are going to find everything elastic or inelastic. There are, मैंने अभी बोला ना, every person is different. For example, for an alcoholic, sir, prices of alcohol increases. Do you think he is going to react to that? वो शराबी उतना ही पिएगा. He is mentally, मतलब बीमारी है. Alcoholism is not by choice. It's a medical disorder. वो बीमार है. दाम गिरने पर उसको नहीं, मतलब दाम गिरने पर वो उस लेवल पे कि वो बढ़ा भी नहीं पाएगा. दिन की अगर 4 बोतल पीने वाला आदमी कितना बढ़ा लेगा? मर जाएगा उसके बाद. So certain things will be elastic for certain people and certain things the same commodity. अच्छा, leave that. The same commodity can be elastic for you and after a point of time can be inelastic for you. For example, currently you need to go somewhere urgently and Uber has surged the prices. You won't care, you will sit on the cab. But on the other hand, if you were going on a random ride, you will say, I won't go, I'll walk it down, or I'll change transport, or I'll not go. You're the same person. The commodity is the same. The circumstances are different. Elasticity helps us understand the reaction of the consumer. It helps us understand that whether raising the price is going to reduce an exponential amount of demand or lagbhag demand. For example, let me give you the criterion. The criteria whether the commodity is elastic or inelastic आपके मन में आना चाहिए. कैसे पता चलता है भैया? If the commodity that you are having has a multiple amount of substitutes, सोचिए हजारों substitutes हैं, आप दाम बढ़ाओगे ना, लोग छोड़ के दूसरे पे जाएंगे क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल है. लेकिन सोच कर देखिए, अगर आपके पास आपका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो प्रोडक्ट कोई नहीं दे पा रहा है, तो आप कितने बढ़ाएंगे तो आप दाम बढ़ा भी देंगे. देख, ये मत बोल कि कितना भी बढ़ाएंगे तो हम तब भी आएंगे. चलिए सोच के बाद देखते हैं. 3000 पर सब्जेक्ट. जितना भी आप मेरे से प्रेम करेंगे कि भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 3000 पर मंथ पे एक बार तो थॉट आएगा, वो भी एक सब्जेक्ट. लॉ ऑफ डिमांड काम करता है भाई. ये मत बोलो कि भैया आप कुछ भी चार्ज करेंगे हम आएंगे. सुन के बहुत अच्छा लगा, पर वो सच नहीं है. दैट इज नॉट द ट्रूथ, है ना. इफ आई रैंडमली कीप चार्जिंग हायर अमाउंट्स, यू आर नॉट गोइंग टू. भैया व्हाट इफ यू आर द ओनली टीचर इन इंडिया
not the only good teacher, only teacher. Still, sir, you are going to say, I might do it for a month. I won't continue for 12 months. CSC is the only electricity provider in Calcutta, only. If it randomly increases the price, are you saying you will not make life changes? You will not shift from washing machine to washing clothes by hand. You will not shift from using microwave to doing it on the gas. Would you not use the geyser relatively lesser? In spite of this person being the only supplier, elasticity still works. But it's not going to create a huge change in life because there aren't substitutes available. ऐसे बहुत क्राइटेरियाज हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि प्रोडक्ट आपके लिए इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक. व्हाट डज दैट मीन? दैट प्राइस सेंसिटिव हो कि नहीं हो. एंड प्राइस सेंसिटिव इज नॉट जस्ट फॉल इन प्राइस, इट मीन्स राइज इन प्राइस ऑल्सो. I want you to think about certain commodities because I do this in every batch and tell me for you a commodity that can be elastic and inelastic. I'll start with myself and I will not use the common ones because otherwise आप बोलेंगे भैया मैं यही बोलने वाला था. For me a thermometer is a highly inelastic commodity. अगर buy one get one भी चल रहा होगा तो मैं बोलूँगा भाई तुम ही रख, मेरे को एक ही का काम है. अगर 50% ऑफ रहेगा थर्मामीटर में, मैं 4-5 थर्मामीटर घर नहीं लेके आऊंगा, है ना. इट्स अ हाईली इनइलास्टिक कमोडिटी फॉर मी. बट फॉर गारमेंट्स, फॉर मी, आई एम अ पर्सन हु हैज स्ट्रगल्ड विथ वेट गेन एंड वेट लॉस ऑल माई लाइफ. तो मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी मैं शॉपिंग करता हूं, मैं करेंटली अभी 32 साइज जीन्स पहन रहा हूं, मैं 34 भी खरीद लेता हूं. इनकेस मोटापा आ जाए तो जीन्स होनी चाहिए घर पे, क्योंकि मेरे को मालूम है कि सेल पे लिया हूं, सस्ते पे मिला है, 3-4 उठा लेता हूं, मालूम है खराब नहीं होगी. पेरिशेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी बिग इशू इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी. मेरे को मेरी लाइफ का सबसे खराब मोमेंट था जब मेरी मम्मी मेरे को बोली थी जा बेटा पपीता लेके आ. मैं गया पपीता लेने और पपीता वाले भैया बोले 50% ऑफ चल रहा है बाबू. मैं बोला भैया 5 kg बांध दो, 5 kg. मम्मी 1 लाने बोली थी, मैं पर 50% ऑफ. यार लालच तो आएगा ना. घर आके मेरे को लगा मम्मी बोलेगी यार ये मेरा समझदार बेटा, दिमाग है इसमें, तारीफ मिलेगा. इतना डांट हमको किसी चीज के लिए नहीं मिला. पता है मेरी मम्मी क्या बोलती है कि पपीता का शेल्फ लाइफ मैक्सिमम 3-4 दिन है, 3 to 4 days. अब दाम गिरने पे मैं ज्यादा ले तो आया, पर आप बिलीव करिए वो फेंकना पड़ा. यहीं पर अगर बुक्स का पर्सपेक्टिव आप सोचें, इफ यू आर इनटू रीडिंग बुक्स एंड स्पेशली थैंक्स टू किंडल नाउअडेज, you don't even have to carry those books. If you read, I'm not talking about just fiction. If you read self-help books also, Dan Sullivan बोल के एक बहुत अच्छे राइटर हैं, अगर समय मिले ना तो ज़रूर पढ़ना उनकी किताबें. वो लाइफ के बारे में लिखते हैं. इट्स अ वेरी गुड बुक. एवरी स्टूडेंट शुड रीड दैट. 3 बुक हैं उनकी, तीनों बहुत बढ़िया हैं. या अगर आप सेपियंस पढ़े हैं, अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन फिक्शन बुक्स. दाम गिरने पे लोग जिनको बुक्स का शौक है ना, वो 50-60 खरीद के आ जाते हैं. इस बार बुक फेयर में आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं जब गया था तो खाली हाथ था, मेरे हाथ में 4 पैकेट थे और वो सिर्फ मेरे थे. मेरी बीवी के हाथ में 8 थे और उसमें से हमने अभी तक एक भी किताब नहीं पढ़ी है. क्यों? क्योंकि किताब थोड़ी ना खराब हो जाएगी. तो सस्ते में मिल रही है, बहुत ज्यादा ले लिया, इलास्टिक है. उसके लिए नहीं इलास्टिक है भाई. अगर कोई है जिसको बुक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, 100 रुपए की बुक 10 रुपए में मिल रही है, क्या करेंगे हम इसका? तो भी नहीं रिएक्ट करेगा वो. नो सर, दोज अदर फैक्टर्स विल इफेक्ट डिमांड. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. योर इनकम इज नॉट अ फैक्टर. There are factors, na, but are they affecting your demand or are they affecting your elasticity of demand? Was availability of substitute a factor of demand? It is a factor affecting your elasticity of demand. Was perishability a factor affecting demand or factor affecting elasticity of demand? I don't know whether you will agree with this or not. Book में है, very rich people and very poor people have inelastic demands.
बोलता है अंबानी को फर्क नहीं पड़ता यार, 10 रुपए की मैगी 50 रुपए की हो गई। गरीब को भी नहीं फर्क पड़ता, जो बहुत पुअर है वो वैसे भी नहीं ले रहा था, अब भी नहीं ले रहा है। वेरी रिच एंड वेरी पुअर, सेल से प्रभावित होते तो मिडिल क्लास ही हैं। Whether upper middle class, lower middle class doesn't matter, but who are these people who walk into a store and get influenced by 10%, 20%, 30% off? Middle class people, right? Anybody who walks into Armani and is buying a 20 to 25,000 rupee jean is not asking Dada kichu kom hobe. It's not, it doesn't work like that. You have to understand, because they know that they are not sensitive to price. Anybody entering that is not looking at prices. So a rise or a fall is not going to drastically impact their consumption. That is what our discussion for today is. That what is elasticity, what are those factors that are impacting elasticity, and what are these degrees of elasticity. 5 degrees हैं. ये 5 degrees को समझने के लिए you need to understand that things that cannot be measured always come at a spectrum. Now what is a spectrum? A range. Like I always say, if you know about any mental disorders or any mental health issues, like let's say depression, autism, schizophrenia, anything that you've ever heard of, they cannot be diagnosed like other diseases. Stage 1, stage 2, stage 3, nahi hota hai. You know, it has a spectrum. So the lack of it is 0. एंड द एक्सट्रीम एंड इज इन्फिनिटी, कि इसका कोई एंड नहीं है. कोई ये नहीं बोल सकता मेरा डिप्रेशन हाईएस्ट डिप्रेशन है, इसके बाद कोई और डिप्रेस नहीं हो सकता. कोई एंड पॉइंट नहीं है. देयर इज नो लास्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन. देयर इज it starts from 0, which means the lack of depression, let's say, and we have infinity, which is unlimited depression, infinite, which cannot be measured. True, false, reality lies between greater than 0 and less than infinity. This here is Chirag, who did not respond at all. There is no elasticity, lack of it. मैं मार रहा हूं घूसा मुक्का, मतलब मारे जा रहा हूं, वो बेचारा ऐसे ही खड़ा है. हाइपोथेटिकल, रियलिटी नहीं हो सकता ये. एंड ध्रुव ऑल्सो कैनॉट बी मेजर्ड. मतलब आई हैव ऑलवेज नोटिस दैट स्टूडेंट्स लाफ एंड थिंक दैट हाउ absurd दिस इज. आई एम सेइंग दिस इज इक्वली absurd. प्राइस बोल रहा है 1 रुपए में 5 लेते हैं, 1 करोड़ में भी 5 ही लेंगे. हाउ इज दैट पॉसिबल? And some of you are going to come up with that. Before that मैं ही बोल देता हूँ, भैया लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, लाइफ सेविंग मेडिसिन्स में our demand is perfectly inelastic. That is what your school is going to say. See, that is situational. But trust me, God forbid, and I pray that it would be inelastic for you. मैं दुआ करता हूँ, पर everybody and every family goes through a bad time. तो मैं आपको अपने घर की बात बता रहा हूँ. In 2005-06 we were going through a very bad period of time financially. So उस टाइम पे ना आई सॉ माई मॉम, विच वॉज नॉट अ लाइफ सेविंग मेडिसिन ऑल्सो, बट एक शुगर मेडिसिन होती थी जो उनको 3 times a day लेना होता था. एंड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स शी रिड्यूस्ड इट टू ट्वाइस अ डे, क्योंकि दाम बढ़ गए थे. सो आई एम सेइंग, अगर ये सच होता ना कि लाइफ सेविंग मेडिसिन आर परफेक्टली इनइलास्टिक, किसी भी इंसान की डेथ इसीलिए नहीं होती कि उसके पास पैसे नहीं थे. कोई कोविड में इसलिए नहीं मरता कि यार मैं हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन के पैसे नहीं दे पाया. बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इफ प्राइस कीप्स ऑन राइजिंग 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 राइजिंग, डिमांड विल कन्वर्ट इनटू डिजायर. बिकॉज अनलिमिटेड पैसा तो इलॉन मस्क के पास भी नहीं है, क्वांटिफाइबल है. अनलिमिटेड तो किसी के पास नहीं है. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम योर डिमांड विल कन्वर्ट इनटू डिजायर, बिकॉज योर परचेजिंग पावर विल बी हिट. 1 लाख की दवाई अगर 10 करोड़ की हो जाती है, भाई 10 करोड़ होना भी तो होगा खरीदने के लिए. ये बोलना मैं तब भी ले लूंगा, जरूर लेना, पर पैसे भी तो चाहिए. नहीं तो वो तो डिजायर है ना. डिमांड के डेफिनेशन में तो डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, और यहां तो परचेजिंग पावर नहीं रहा आपका. बट यस, इन अ सिचुएशन कि 100 रुपए की दवाई 500 की हो गई, तो भी मैं उतना ही खरीदूंगा. So you can give an example situationally, but in reality this doesn't exist. You know what is this is called?
Chirag is called perfectly inelastic. And in economics, you're going to come across this word perfect a lot of times. And it has nothing to do with how it is ideal. No, it's not an ideal situation. Perfect in economics means it is hypothetical, not reality. सोच है एक, जैसे एक आप में से 10th में इकोनॉमिक्स में कुछ बच्चे थे, किसी का था, आपका था, मेरे को याद है. There is a competition called perfect competition, which doesn't exist. It's an idea, एक सोच है. It's like if you watch this awesome movie of Keanu Reeves, The Matrix. एक आइडिया है वो, रियलिटी नहीं है कि सर में प्लग लगाया तो दूसरा दुनिया में चला गया. एग्जैक्टली एक सोच है, संभव नहीं है. जीरो पॉवर्टी, नॉट पॉसिबल. अमेरिका में भी नहीं है और ना कभी अचीव हो पाएगी. इट इज इम्पॉसिबल. बट वही जो आप लोग बोलते हैं ना, शायद आई थिंक मतलब आई ट्राई टू कीप ट्रैक. यू गाइस से दिस वर्ड अ लॉट. यूटोपिया, आई थिंक an idealistic situation where everything is in perfect equilibrium. That is what utopia is, कि सब कुछ सही चल रहा है ना. तो वो है, नाम ही उसके आगे आइडियल. नॉट बिकॉज हाउ ब्रिलियंट इट इज, बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट. इट डजंट, करंटली इट डजंट एग्जिस्ट. होगा फ्यूचर में, आई डोंट नो, but it doesn't exist. And here this would be perfectly elastic. मतलब टू गिव यू रेफरेंस, ये है यहाँ पर सर थॉर का हैमर. कितना भी दम लगा लो, सिवाय कैप्टन अमेरिका और थॉर के कोई नहीं उठा पाएगा. हल्क नहीं उठा पाया यार. हाँ, विजन उठा लिया था पर विजन मर गया तो वो अब है नहीं दुनिया में. पर बात समझिए, आई एम टेलिंग यू दिस, immense amount of brute force can be used in this, yet no reaction. Here आपने हल्का सा रबर बैंड को टच किया, रबर बैंड इतना बड़ा बन गया कि आप उसको माप ही नहीं पा रहे हैं. That also doesn't exist. Reality is, sir, in the middle at 1. I think this was 6 slabs के बदले 6 slabs कौन थे एग्जाम्पल में? I think यशवी, राइट? नहीं, युग को मैंने 6 थप्पड़ मारे थे, युग ने वापस कितना मारा? डॉट. रीजन एंड रिएक्शन आर इक्वल. वी से दैट यू आर इक्वल टू 1. यूनिटरी इलास्टिक. 6 से ज्यादा का रिएक्शन आई थिंक कृष्णा का था. टू दी राइट ऑफ 1 यू हैव ग्रेटर देन 1, लेस देन इंफिनिटी. दिस इज कॉल्ड एन इलास्टिक कमोडिटी. चाहे 1 से 1.01 क्यों ना हो, तो वो रिएक्टिव है. इसका नाम है relatively elastic. Comparatively it is elastic. It is closer to what? Perfectly elastic. But it's not perfectly elastic. It's not immeasurable. It is measurable. So therefore it is comparatively elastic, relatively elastic. और मैंने 6 मारे थे, 5 वापिस आए थे, वो है less than 1. चाहे वो 0.001 थप्पड़ ही क्यों ना हो, रिएक्शन आया ना. अब बच्चा बोलता है भैया चिराग में और 5 वाले थप्पड़ में फर्क क्या है? चिराग से तो रिएक्शन ही नहीं आया, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक है. नो रिएक्शन है ना. मतलब नो ऑफेंस, सार्थक आप सपोज हो किसी को डीएम में मैसेज किया, हाय आई रियली लाइक यू, एंड यूज करता है ना बच्चा लोग आजकल, आई वांट टू मेक फ्रेंडशिप विथ यू. पहले तो हमको ये नहीं समझ आता व्हाट इज मेक फ्रेंडशिप. मैं आपके साथ दोस्ती बनाना चाहता हूँ का मतलब क्या है ना. सपोज वो मैसेज आता है और सार्थक वो ना तुमको ब्लॉक कर देती है. माई पॉइंट इज दैट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स. सार्थक दुनिया को क्या बोल रहा है, यार वो रिप्लाई नहीं की. नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, वो रिप्लाई की है. वो रिप्लाई का मतलब नो है, एक्सट्रीम नो है. समझ रहे? ऑन द अदर हैंड आप टेक्स्ट किए, बोले नो आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, तो आप फ्रेंड जोन हो गए. रिएक्शन लेस देन 1 है, पर वो उसका इंटेंशन कुछ और है. और सपोज वो आई लव यू भेजा, एग्जैक्ट आई लव यू आया 1. वो भेजा आई लव यू, बोला आई लव यू बट आई वांट टू मैरी यू, वो मोर देन 1 हो गया. ये बोलता आई लव यू, वो बोलती है आई लव यू, मैं 7 जन्मों तक तुम्हारी हूँ, वो इन्फिनिटी हो गया. क्या एग्जाम्पल था ये, है ना. तुमको बहुत रिलेट हो रहा है. हाँ, आई थिंक यू वांट टू आस्क समथिंग सर. ऑफ कर दें, बहुत गर्मी हो जाएगा यार. लेट मी थोड़ा देर ऑफ कर दीजिए.
लेट मी इंक्रीज द टेम्परेचर, घुटन हो जाता है यार। साइंटिफिक स्टडी है, हम बोलते हैं क्यों मैं एसी पे इन्वेस्ट करते हैं, योर माइंड वर्क्स बेटर इन अ कूल इन्वायरमेंट। आप अगर ठंडा बोलते नहीं है बड़े बुजुर्ग लोग, ठंडा दिमाग से सोचो। सो दैट इज वाई मेरे को भी कन्वीनियंट रहता है, थोड़ा सा ठंड सह लो, जैकेट लेके आना, कूल होना होगा। सो देर आर 5 मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलास्टिसिटी। मैग्नीट्यूड्स मतलब रिएक्शन। These two you have to understand are just a point of reference. They don't exist. But I have known this for the last 12 years that students don't understand until unless they are given examples. That is why I am trying to convince you that ये नहीं है, पर मैं आपको randomly weird examples दे रहा हूँ कि कुछ रिएक्शन नहीं है। पर नाउ कमिंग बैक टू द नंबर्स, ये पता है क्या बोल रहा है, 10 रुपए में 5 लेंगे, फ्री में बिकेगा तो भी 5 लेंगे, 100 करोड़ का हो जाए तो भी 5 लेंगे। ये वाला एक्सट्रीम। इज देयर अ रिएक्शन सर? देयर इज नो रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड है तो देयर इज परफेक्टली इनइलास्टिक। उत्कर्ष 10 रुपए में 1 लेता है, 1 मात्र, 9.99 में अनगिनत लेगा। ये वाला रिएक्शन है। थोड़ा सा भी 1 पैसा सा भी अगर करो तो वो अनगिनत पे चला जाएगा। मैं बोल रहा हूं ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये भी नहीं है सर। जिस कन्विक्शन से आप बोल रहे हो कि ये पॉसिबल नहीं है, आई एम सेइंग कि ये भी नहीं है। आप बार बार क्या सोच रहे हो, नहीं यार 100 की चीज अगर 500 हो जाए तो मैं ले सकता हूं, तभी भी जरूरत हो। मैं बोल रहा हूं एक्सट्रीम प्राइस पे चला जाए अगर तो भी ले पाओगे क्या? परचेजिंग पावर तो इंपैक्ट कर जाएगा। जितना ऑफेंसिव आपको ये लग रहा है ये भी लगना चाहिए, जितना अनरियलिस्टिक ये लग रहा है ये भी लगना चाहिए। दैट इज वाई बोथ ऑफ देम आर परफेक्टली, वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, द अदर इज परफेक्टली इलास्टिक। समवेयर इन द मिडल is elasticity equal to 1, which is called unitary elastic, where the reaction and the reason is equal. Justifiable proportions. Equilibrium नहीं है, 1 है। रीजन एंड रिएक्शन, मेरा मतलब मैं आप क्या फालतू में रिस्पॉन्ड किए थे मेरे पास, मैं आपको मारा तब आप मेरे को मारे ना, तो इक्वल रिस्पॉन्स आया। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। 6 का 6। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए में 100 लेता था, 9 रुपए में 110। अब आप बोलेंगे नहीं यहां क्वांटिटी का चेंज ज्यादा है। क्लिंटन, वी आर नॉट लुकिंग एट एब्सोल्यूट चेंजेस, वी आर लुकिंग एट परसेंटेज चेंजेस। What is the percentage change of price here? 1 out of 10 is 10%, and 10 out of 100 is also 10%. मतलब मान लो कि मैं एक वेट लॉस जर्नी पे जाता हूं और 4.5 kg लूज करता हूं, मैं 90 kilos right now. What body weight fat percentage I have lost? 5%. And let's say Sarthak, who is 60 or 50 kgs, also loses, let's say, 2.5 kilos. How many of you realize that we have lost the exact same percentages? 4.5 out of 90 and 2.5 out of 50, both are 5%. अगर मैं 10% लूज करता हूं 9 किलो और सार्थक 5 kg लूज करता है, मत बोलिए आप ज्यादा लूज किए हैं। कैसे? मैं अपने बॉडी वेट का कितना परसेंट लूज किया? 10%। सार्थक भी 10%। We are not looking at absolute numbers. We are looking at percentages. So जब रीजन और रिजल्टेंट इक्वल रेट में बढ़े या गिरे, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। 10% का रिस्पॉन्स 10% से, 6 थप्पड़ का रिस्पॉन्स 6 थप्पड़ से। ऑन द अदर हैंड यशवी 10 रुपए पे 1000 लेती हैं, 9 रुपए पे 2000। ये एक्सट्रीम नहीं है सर, मेजरेबल है। एक्सट्रीम होता है इन्फिनिटी। ये 2000 है सर, 2000 मापा जा सकता है। इफ योर मैथ इज ओके, 10% प्राइस फेल, 100% क्वांटिटी रोज, 100% इज मेजरेबल। एक्सट्रीम नहीं है, हाई है, इट इज मोर देन 1। हाउ मच मोर देन 1 इट इज नॉट राइट नाउ रेलेवेंट, बट इट्स नॉट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज समथिंग दैट इज नॉट मेजरेबल, दिस इज मेजरेबल सर। 100 करोड़ भी मेजरेबल है। When I say measurable, there is a quantifiable number attached to it. And infinity is something that does not have a number. That is why it's infinity.
अगर वो इन्फिनिटी होगा तभी संभव है। ऑन द अदर हैंड 10 रुपए पे 1000 था, 5 रुपए पे दाम गिरा है। भव्या इज ओनली बाइंग 1200 यूनिट। इफ योर मैथ वर्क्स हियर 50% प्राइस ड्रॉप है, हाफ, बट क्वांटिटी इंक्रीज बाय 20%। प्राइस ने कितने से थप्पड़ मारा? प्राइस का स्पीड क्या था? 50%। क्वांटिटी का रिएक्शन का परसेंटेज क्या है? 20। रिएक्शन ज्यादा आया है कि रीजन ज्यादा आया है? रिएक्शन आया है 20% से, रीजन है 50% का। रीजन ज्यादा है, रिएक्शन कम है, तो ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है, लेस देन 1 है। यहां से इसके बीच में होगा। समझ पा रहे हैं? आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू राइट एनीथिंग राइट नाउ, आई जस्ट वांट टू डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स विद यू। लिखना आज नहीं है, नेक्स्ट क्लास है, कल है। अभी आप मेरे साथ बात क्या करोगे? द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी वो मैं लिखवा देता हूं एक बार, दैट इज इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए प्लीज। डिमांड का जगह छोड़ दो, लिखिए पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेडिंग, और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी। तन्वी, आपको समझ में आ रहा है ऑनलाइन में? हाँ सर। चलिए, क्या बात हो रहा था? डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी लिखिए। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, the degree of responsiveness of quantity demanded due to, क्या लिखो? ड्यू टू, आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए नेक्स्ट? ड्यू टू अ चेंज इन व्हाट? चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस पी, इनकम वाई। The degree of responsiveness of quantity demanded due to a change in price of the commodity is called price elasticity of demand. Price elasticity of demand. Elasticity बहुत बड़ा है यार। हाँ, पर इनकम इलास्टिसिटी भी होता है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी होता है, पर अभी प्राइस इलास्टिसिटी पे बात हो रहा है। वो इसमें नहीं आता है। इनकम की वजह से चेंज होता है ना, आपके सिलेबस में है। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन इनकम इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट। अभी हम प्राइस इलास्टिसिटी पे हैं, इसके बाद इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी होगा। फैन ऑन कर दें, पीछे वाला वो एसी बंद कर देते हैं 5 मिनट। मे बी इट्स अ साइन बंद नहीं हो रहा है, देखो रिमोट खराब हो गया है, सॉरी। अब हम क्या करें? बार बार ही आउट ऑफ फोकस हो जाता है यार, पता नहीं। चलिए, क्लियर हुआ ना? अभी भी लग रहा है नहीं हुआ है, अभी पकड़ लेगा, रुकिए। चलिए, सो वेयर वर वी? डेफिनेशन। अब यू डोंट हैव टू राइट दिस टुडे, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। मैं लिखवाऊंगा, डिक्टेट भी करूंगा। व्हाट वुड बी फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट योर इलास्टिसिटी? आई विल जस्ट डिस्कस 5-6 एंड देन आई विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट डिस्कशन। Availability of substitute is one point. Yes, sir. Give me a good example, Clinton, of a commodity that does not have a substitute. Not that good substitute. मतलब a lot of people in the previous batch said Jio. Jio is not a monopoly. They are dominating the market. It has substitutes. Something that does not have a substitute, like CSC in West Bengal or IRCTC in India. यूरोप में ना ये सिचुएशन नहीं है, जानते हैं? यूरो रेल दूसरी कंट्री उसकी भी चलती है। मतलब यूरोप में जो ट्रेन का नेटवर्किंग है ना, वो एक देश का नहीं है। कोई सा भी देश में जा सकता है, और वो लोग का अलग अपना मतलब ग्रुप पे है। मतलब कार्टेल में नहीं बोल सकते हैं, वो गलत वर्ड हो जाएगा। एक उनका अपना अंडरस्टैंडिंग है। दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑल ओवर यूरोप।
But in India, every single train is operated by IRCTC. And that is the why you must have noticed that their pricing is also very different. Because it's a monopoly, they can do it. Anybody who is not a monopoly cannot discriminate with price. CSC does it, you know. There are different electricity rates for factory, commercial and residential. Leave that, sir. You will not believe that there are different rates area-wise. In posher areas, they are charging higher per consumption rate. And in backward areas, they are charging lower consumption rate. अब तुम देखेगा तुमको लगेगा चैरिटी कर रहा है. They are working on elasticity. They know people who are living in posh areas, they are not going to reduce or their consumption even when the prices are high. In commercial buildings ज़्यादा हो जाता है. You have to get a new meter. Exactly. Change the meter. And the prices are way higher. पर बिजनेस है, करेगा लोग, इनइलास्टिक कमोडिटी है. आप दूसरी जगहों पे देखोगे वहां पर रिलेटिवली चीपर है, क्योंकि वो लोग को क्योंकि उनको आप इंसेंटिव देना चाहते हो कि दाम गिरा रहे हैं, तुम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करो, बढ़ा दे तो मैं भी वो लोग कम. और अगर बढ़ा देंगे तो भयंकर कम कर देगा वो लोग. बट दिस इज ओनली पॉसिबल, आर एच राग, ओनली पॉसिबल इफ यूर अ मोनोपोली. बिकॉज इफ आई स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग, सोच कर देखो, तेरा फीस अलग, इसका फीस अलग, तेरा अगर कम है तुम तो खुश है, पर ये छोड़ देगा. एंड ही हैज सब्सटीट्यूट्स टू गो टू. बट इफ ही डिड नॉट हैव अ सब्सटीट्यूट, तो मैं तो आपसे ज़्यादा दाम लूंगा, इससे कम दाम लूंगा, पहले पूछूंगा कि अरे फैमिली इनकम बताओ, उसके हिसाब से आपकी फीस डिसाइड होगी, है ना. बोलिए, युग की फीस, हाँ फिर से नोटिक, सही है. कुछ बोल रहे थे आप, सॉरी. जैसे पॉश एरियाज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वेरी गुड एग्जाम्पल सर, न्यू टाउन एंड किया एब्सोल्युटली वेरी गुड एग्जाम्पल. प्लीज फोकस करें. सो सब्सटीट्यूट होना आपकी कमोडिटी को इलास्टिक कर देता है. और अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं या कि ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है जिसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, तब फीजिबल क्या है, दाम गिराना कि बढ़ाना? बढ़ाना. लेकिन आप जियो हैं, आप ऑलरेडी वोडाफोन एयरटेल मार्केट में रूल कर रहे हैं, आपको घुसना है, आप क्या करेंगे? आप तो फ्री में देंगे. आप बोलेंगे 1 महीना यूज करके देख भाई, मजा नहीं आया तो मत ले. यही तो ब्रिलियंस है. मैं बस यही बोलता हूं कि कॉमर्स, साइंस का देखो मेरे को पता ही नहीं तो मैं बोलूं क्यों, ह्यूमैनिटीज मेरे को आती नहीं है. कॉमर्स का बेस्ट पार्ट यही है, अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको होते हुए दिखेंगी, एंड फिर पढ़ के मज़ा आएगा. नहीं तो क्या है यार, किताब ही है, इट्स लाइक वेरी बोरिंग. बट इफ यू सी थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, है ना, यू मस्ट हैव नोटिस दिस विद जिम मेंबरशिप्स, एनी टाइम फिटनेस, फिर दीज बिग वंस, दे आर चार्जिंग 25,000-30,000 रुपीज इंक्रीजिंग प्राइसेस. क्योंकि जो वहाँ जा रहे हैं ना यार, उनको फर्क नहीं पड़ता. बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. 1 महीने का ये हमारे यहाँ फ्रिक्शन जिम है, वो 3,500 रुपीज़ लेता है, पर अगर आप साल भर का एक बार में पैसा दोगे तो 16,000 में हो जाता है. उनको मालूम है कि जो एक बार में देगा वो जिम जाएगा कितना, और जो जाएगा उसको फर्क क्या पड़ता है, वो 16,000 एक बार में देगा. मतलब मोस्ट बिजनेस डिसीजंस रिगार्डिंग प्राइसिंग आर बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी. Most business decisions. If you know your product is elastic, reduce the price a little. You will get a good reaction. If you know the product is inelastic, increase the price a little. मैंने किया ना, मैंने तो ये बताया भी, लास्ट बैच में भी बताया. My fees last year was 1,400 for 1 subject and 2,000 for 2 subjects. I increased by 10%. And गिरा होगा, गिरना चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. पर मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो गया, 300 से 290 पे आ गया. हाँ, तो अगर आप गिर भी जाए, अदर थिंग्स तो नहीं कांस्टेंट है ना, मैं बोल रहा हूँ अगर गिर भी जाए, 1,400 इंटू 300 आता था, अब 1,500 इंटू 290 आएगा, जो पहले से ज़्यादा है. इट इज स्टिल ग्रेटर देन व्हाट आई वाज अर्निंग, राइट. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिर गया है ना. हमको तो कोई नेशनल अवार्ड नहीं चाहिए कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं. राइट नाउ इफ यू कंसिडर, आई एम डूइंग इट फॉर द मॉनेटरी एस्पेक्ट, एंड मॉनेटरी एस्पेक्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिर जाए पर रेवेन्यू बढ़ जाए, बुरा क्या है इसमें? मैं तो बोलता हूँ अगर कोई बोलेगा कि भैया हम आपको 50,000 रुपीज़ देंगे, हम सिर्फ 5 बच्चा पढ़ा ले, या मान लीजिए 10 बच्चा पढ़ा ले, 10 स्टूडेंट्स, इफ दे गिव मी मोर रेवेन्यू
than what I am earning. Why should I be bothered about it? Think what I'm saying. है ना, elasticity. The pricing of expensive cars focused on elasticity. Most pricing decisions are based on this. Anything else that you can think of? Necessity है कि नहीं ना, उस पर भी मैटर करेगा. Proportion of income. Let's not call income, let's call it proportion of income. If your proportion of income that you are spending on the commodity is very high, जैसे tell me a commodity on which you spend a lot of your percentage of income. मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, ट्रैवल. मेरा काफ़ी पैसा ट्रैवलिंग पे खर्चा होता है. ट्रैवलिंग मेरे को घूमने का शौक है, तो मैं ट्राई करता हूँ साल में कम से कम 3 ट्रिप 4 ट्रिप तो मैं करूँ, छोटे छोटे ही करूँ पर करूँ. अब इफ ट्रैवल एयरलाइन प्राइसेस टूरिज्म का रेट बढ़ जाता है, मेरे जैसे लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरा हाई प्रपोर्शन ऑफ इनकम पे धक्का लगेगा. करेक्ट सर. लेकिन सोचिए जो साल में एक ही बार जाता है, वो बोले यार मेरे को एक ही बार जाना है, मैं एक ही बार जाऊंगा, बोला तब वो इलास्टिक है. लेकिन अगर वो जाएगी एक ही बार, प्रपोर्शन ऑफ इनकम बहुत मीगर है उसके लिए, फर्क नहीं पड़ रहा है ना. मतलब आप बताइए तो प्रचितेश, अगर माचिस का डिब्बी का दाम बढ़ जाता है, क्या फर्क पड़ेगा आपको? कितने का आता है? कैसे पता तुमको ये बात? हाउ डू यू नो दिस? गैस तो नहीं था ये, जितना कॉन्फिडेंस है तो तुम बोला है. पूजा में यूज होता है. अच्छा, कौन सा पूजा कर रहे हो तुम ये? पर लेकिन सोच कर देखिए कि इस इंसान की इनकम ही 10 रुपए है, उसके लिए तो उसका जीवन बदल गया ना, उसके लिए तो एक ड्रास्टिक चेंज हो गया. सो नॉट इनकम, प्रपोर्शन ऑफ इनकम. What percentage of your income are you spending on the commodity? If it is a huge, humongous portion, then you are going to be affected by it. But if it is a meager, negligible amount, and you have to understand this, it doesn't depend on what is your income. It depends what is the proportion of the income that I am speaking about. आपकी इनकम क्या है? मुकेश अंबानी के लिए तो सब कुछ ही छोटा प्रोपोर्शन में चला जाता है. एक आदमी है, मान लीजिए महीना का 5 लाख कमाता है, दूसरा आदमी भी 5 लाख कमाता है. 1 लाख रुपया वो एक जन खर्चता है उस पर, और एक आदमी दूसरा कमोडिटी पे 4 लाख खर्चता है. ज़्यादा फर्क किसको पड़ रहा है? 4 लाख वाले पे. सो दोनों कमा तो 5 ही रहे हैं, इनकम पे पॉइंट नहीं है. प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कितना स्पेंड करते हो उस पे है. समझ पा रहे हैं सर? और कुछ सोच सकते हैं? नहीं, वो डिमांड का फीचर है. आप जो शायद बोल रहे हैं वो हैबिट्स है. इफ यू आर हैबिचुएटेड टू समथिंग, इफ यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, अरे तब आप इनइलास्टिक है. बोल सकते हैं थैंक यू, बट फॉर मी इट दैट वुड बी कॉफी. द ओनली थिंग दैट आई एम एडिक्टेड टू इज कॉफी. सर पसंद तो मेरे को बटर चिकन भी है, पर अगर बटर चिकन मेरे को 850 रुपये में मिलेगा जिसका दाम 350, मैं नहीं खाऊंगा. लेकिन मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, दिस इज एक्चुअली अनहेल्दी, द काइंड ऑफ एडिक्शन दैट आई हैव फॉर कॉफी. मतलब वाई एम आई टेलिंग यू, बिकॉज एज अ कंज्यूमर, अंदर का कंज्यूमर मेरे को अलाउ नहीं करता है, पर क्योंकि एडिक्शन था, जो जब व्हेन आई वाज इन ग्रीस, दे सर्व्ड मी अ ब्लैक कॉफी. द कॉस्ट ऑफ अ ब्लैक कॉफी इज लिटरली 2 रुपीज. चीनी भी नहीं लगता मेरे में, तो पानी और कॉफी का एक सैशे. दे चार्ज्ड मी 800 रुपीज फॉर दैट. माई वाइफ सेड मत पियो यहां से. हम बोला नहीं, माथा नहीं काम करेगा. आई स्टिल हैड इट, बिकॉज एडिक्शन है ना यार. तो एब्सोल्युटली इनइलास्टिक है ये मेरे लिए. कॉफी के बिना नहीं चलेगा. किसी लोगों का, मेरे पापा मम्मी के लिए चाय इशू है एक. कुछ मेडिसिन हो सकती हैं, इंसुलिन या कोई भी, मतलब नेसेसिटी के टाइम पर आप नहीं सोचेंगे आप इलास्टिक है कि इनइलास्टिक. लेना है तो लेना है. रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली तो होता ही नहीं है ना, तो सब कुछ रिलेटिवली पे रहेगा. कुछ सोच पा रहे हैं यशवी ऐसे जो आपके लिए इलास्टिक या इनइलास्टिक हो? क्या है आपके लिए इलास्टिक की इनइलास्टिक? हमको तो लगता है हाईली इलास्टिक है. नहीं देखेंगे नेटफ्लिक्स क्या है. अगर नेटफ्लिक्स आपको बोले आज से आपका मंथली सब्सक्रिप्शन 1000 रुपया,
वो अब चोरी चकारी का बात नहीं कर रहा हूँ। नेटफ्लिक्स तो नहीं लेंगे आप। अब आप इलीगली लेते हैं, किसी से पासवर्ड शेयर करके डच करते हैं, वो सब बात कहानी अलग है। यूट्यूब तो आप पैसा देंगे, अगर दाम बढ़ा भी देगा तो आपके लिए इलास्टिक है, देना ही होगा। ध्रुव, एनी कमोडिटी दैट माइट बी इलास्टिक और इनइलास्टिक टू यू? पानी खरीदते कहाँ हो यार? बट हाँ, अगर आप परचेज कर रहे हो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आप इनइलास्टिक बोल रहे हैं उसको। कि आप ऑटो में नहीं बैठेंगे, पैदल चले जाएंगे, यू विल वॉक इट डाउन। सेम ही रेट होता नहीं आजकल ऑटो का? अच्छा, करेक्ट। सुहानी, एनीथिंग दैट इज इलास्टिक और इलास्टिक? थिंक अबाउट इट यशवी टिल देन। I think it's inelastic. True. Internet connections. Tanvi, if you can add on something. Online में भी अगर कोई contribution आए, या एहतिशाम, something that is elastic or inelastic to you? Garments तो I think the pure. Sorry, football boots. हाँ, ये जो स्नीकर हेड है उनके लिए तो हाईली इलास्टिक का एक्चुअली डिपेंड करता है। वो ऑब्सेशन वाले हो तो इनइलास्टिक हो जाते हो, कि 25,000 का जूता ले रहे हो, 30,000 का जूता ले रहे हो, लाख में भी होता है। नहीं यार, जेन्युइनली हमको उतना आइडिया नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए क्या इनइलास्टिक है कि इलास्टिक है? इलास्टिक है। सस्ता हुआ तो 4-5 ले लोगे, नहीं तो नहीं खरीदोगे। वन है एनीथिंग कमोडिटी दैट माइट बी इलास्टिक और इनइलास्टिक टू यू? कुछ नहीं। ये होता है, देखो, स्टोइक इंसान, कुछ नहीं, नथिंग। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं दाम गिरेगा तो बहुत ज़्यादा ले लूँगी, कम ले लूँगी, नथिंग। आई डिपेंड ऑन नथिंग। ये महापुरुष हैं। आपका यशवी कुछ आया दिमाग में? क्लोथ्स, देखिए क्लोथ्स ना इस्टेब्लिश्ड है, दैट इज वाई आई ऑलवेज टॉक अबाउट केस स्टडीज एंड ऑल। क्लोथ्स का तो सिचुएशन ऐसा है मैम कि 20,000 की जीन्स आती है, 2,000 की जीन्स आती है, आप फैंसी मार्केट जाओगे 200 की भी आती है। द ब्रिलियंस ऑफ द गारमेंट इंडस्ट्री इज दिस, है ना। आई पर्सनली बिलीव दैट गारमेंट से ज्यादा इलास्टिक कमोडिटी कोई नहीं है। फोन, फूड, अच्छा। एंड मतलब दुर्गा पूजा के टाइम पे फ्लावर्स इन इलास्टिक कमोडिटी है। मेरे लिए इलास्टिक है सर, बहुत ज़्यादा दाम होगा मैं नहीं खरीदूंगा। आपके लिए हो सकता है मैंडेटरी हो, वही बात है। इट इज़ गोइंग टू, दैट इज वाई आई आस्क एवरीवन दैट यू नीड टू फर्स्ट इस्टेब्लिश योर रिलेशनशिप विद योर कंजम्पशन एंड देन थिंक दैट वेयर वुड यू रिएक्ट और नॉट रिएक्ट। लोग अगर करना है तो भाई इनइलास्टिक है, और जहां आप अपना कंजम्पशन, राजवीर इफ यू कैन थिंक ऑफ समथिंग, राजदीप सॉरी, anything sir, some good example that might be elastic, might be inelastic. कुछ आ रहा है दिमाग में? क्लिंटन, पेट्रोल, इज इट इलास्टिक फॉर यू और इनइलास्टिक? इनइलास्टिक। भाई गाड़ी में तेल लगेगा ही लगेगा। मेरे को अगर वैदिक से न्यू अलीपुर आना है, आप 100 रुपया पर लीटर चार्ज करो मेरे को, कि 105 रुपया पर लीटर चार्ज करो, मेरी गाड़ी में तो भाई पेट्रोल 20 लीटर की टंकी में 20 लीटर ही डलेगा। पूरा इलास्टिसिटी तो चालू करने से पहले मैं क्या बोला, सब्जेक्टिव है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत लोगों के लिए इलास्टिक होगा, नहीं लिखेंगे ना सर, आपसे पूछा जाएगा। इनइलास्टिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर मैंडेटरी है कि नहीं सर, सबके लिए सब पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पर एसी मैंडेटरी नहीं है ना। मेरे लिए वैक्यूम क्लीनर, इंडक्शन कुकर, डिश वॉशर, गीजर, ये सब तो नहीं मैंडेटरी है। हाँ, मेरे को फ़ोन चार्ज करना होगा, पंखा लगेगा, लाइट लगेगा, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। पर मेरे को ज़रूरी तो नहीं है कि मैं अपने घर में बर्तन उससे डिश वॉशर में धुलवाऊँ। या अगर आपने कभी खरीदा है, मेरे जैसे बेवकूफ़ आप बने, वो 15,000 रुपये का वो गोल वाला वैक्यूम क्लीनर, मत लीजिएगा, वो इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए नहीं है। नहीं, वो अटक जाता है यार हर 2 मिनट में। वो भारत के घरों के लिए नहीं बना है, वो विदेश में ठीक है। और दूसरा आया वो डॉग, वो उनका फाइट ही होता रहता है यार, उसको लगता है कि उसको खाने आया है।
आधे से ज़्यादा बार तो तोड़ने की कोशिश करता है उसको। एंड बीगल्स आर वेरी नॉटी। वो जब बंद भी रहता है ना, उसके पास जाके उस पर पैर वैर मारता है, नीचे गिराने का कोशिश करता है, कि उसका वो नेमेसिस है। हमारे घर में वो पड़ा है, बस यूज़ ही नहीं होता है। सो ये बोलना बहुत रिस्की होगा कि भैया यूज़ करेंगे ही करेंगे। नहीं सर, बहुत सारे यूजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो आप बंद कर देंगे, है ना। आप सॉरी कम कर देंगे, ये नहीं बोल सकते कि सेम रह जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, दैट एवरी पर्सन, एज यू सेड, leave aside person, sir, for you at different intervals the same commodity is elastic or inelastic. At a point in my life I was crazy for school bags. हाँ, मेरे पास 5 स्कूल बैग थे सर। मैं हर दिन नया, मतलब नया नहीं, डिफरेंट लेके, मंडे का मेरा अलग बैग होता था, ट्यूसडे का मेरा अलग बैग होता था, 12th तक भाई शौक थे यार, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, हो सकता है आपके घड़ी का शौक हो, है ना, हर इंसान का शौक अलग होता है। और यही मैं बोलता हूँ कि यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स, यू नो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। वो उसका शौक है यार। तुम जिस चीज के बारे में पैशनेटली सोचते हो, जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया उस बारे में वो सोचे ना, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड इंटेंसिटी तो उसका भी सेम है। किसी को ग्लासेस का शौक हो सकता है, किसी को मान लीजिए शेड्स का शौक हो सकता है, कपड़ा का शौक हो सकता है, स्नीकर्स का शौक हो सकता है। वो तो अलग अलग चीज है ना, दैट यू कैन एंटर इनटू दैट। बट इलास्टिसिटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड यू एज अ बेटर कंज्यूमर, दैट व्हाई डू यू चेंज योर कंजम्पशन व्हेन प्राइसेस राइज और फॉल। आप अपने आप के कंजम्पशन पैटर्न को बेटर एनालाइज कर पाएंगे, यार मैं क्यों लिया ये एक्स्ट्रा। कई बार होता है ना, हम रेस्टोरेंट जाते हैं और बोलते हैं लास्ट वाला नहीं मंगाते तो ठीक था, मे बी बिकॉज जस्ट द प्राइस फेल यू ऑर्डर्ड मोर, है ना। आई डोंट नो आप में से कौन बता पाएगा। एहतशाम, रमज़ान चल रहा है, इग्नोर करना इस बात को, सुनना भी मत। आप बताइए व्हाट इज अ हैप्पी आवर। डोंट एक्ट, ओके, डोंट एक्ट विथ मी, डोंट डू एक्टिंग। हाँ क्यों, हाँ इसीलिए तो बोले आप मत सुनो। अच्छा एक्टिंग कर रहा है। अरे सही नहीं पता, लोग ज्यादा आएंगे तो तभी भी अगर वो लोग थोड़ा सा प्राइस कम भी कर देगा, उन लोगों का बाय वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही। पॉइंट होता है हैप्पी आवर में क्या होता है सर, इन बार्स एंड ब्यूरीज दे अलॉट अ टाइम वेयर इज अ रिलेटिवली भीड़ कम होती है। देखना ये मोस्ट प्रोबेबली लोग दोपहर के टाइम पे करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई जाता नहीं है उधर। तो वो क्या करते हैं, वो प्राइसेस बहुत ड्रास्टिकली स्लैश कर देते हैं उसी दिन में, और फिर रात को बढ़ा देते हैं। हैप्पी आवर उस घंटों में प्राइस की ये रहेगी, सस्ती हो जाएगी अल्कोहल, और आप बिलीव नहीं करेंगे लोग लुढ़क लुढ़क के जाते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ मच टू ड्रिंक ना, दे आर ड्रिंकिंग ओनली बिकॉज सस्ती है तो चलो जो मिले पी लो, फिर लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। पॉइंट क्या है, प्राइस फेल, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज टू अ ग्रेट प्रपोर्शन। पर एहतशाम जाएगा अगर, दाम गिरा कर भी नहीं लेगा भाई, उसका रिलीजन अलाउ नहीं करता है, तो उसके लिए इलास्टिक हो गया, है ना। तो देयर वुड बी मल्टीपल फैक्टर्स, सिगरेट्स, हुक्का, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन सर, ऑल ऑफ देम फॉल इनटू वन कैटेगरी। आप हुक्का सिगरेट पे जा रहे हैं, जरूरत ही नहीं है सर। चीनी वाले लोगों को देखा है कभी आपने, शुगर, आप उनको मत दो चीनी, देखो क्या करते हैं वो, सिगरेट से ज्यादा तलब है उस चीज की उन लोगों को। यू डोंट गिव माई डैड अ डिजर्ट आफ्टर हिज फूड एंड सी व्हाट हैपेंस इन माई हाउस। मीठे में क्या है, नहीं है, सर उठा लेंगे वो, पूरा घर उठ जाएगा, खत्म। मीठा चाहिए खाने के बाद, पापा डिलीवरी चार्ज मांग रहा है, 5 रुपए का पेड़ा मंगा रहे हो, 70 रुपए डिलीवरी चार्ज मांग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीठा खाना है हमको। विलेनाइज नहीं किया गया ना जैसे बाकी चीजों को किया गया। मीठा इज हैप्पी ओकेजन, अरे मुंह मीठा कराओ, नहीं तो अगेन लीगल ड्रग है तो ड्रग ही, सॉरी, हाँ एडिक्शन है, हाँ ड्रिंकिंग भी फिर कोई बोलेगा हमको हैबिट है, कोई कोकेन करता होगा हैबिट, कोई मर्डर करता होगा मेरा आदत है यार, साल का एक तो बनता है ना, है ना, इट इज एडिक्शन। नाउ दैट इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट हैबिट। चोरी करना भी है क्या? हो सकता है, क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं उसको, क्लेप्टोमेनिया। हाँ
when you have a disorder that you have to steal. कंपल्सिव हाँ, वो झूठ बोलने को कंपल्सिव लायर बोलते हैं और कंपल्सिव स्टीलिंग इज क्लेप्टोमेनिया. पर पॉइंट आप समझिएगा. कमिंग टू द लास्ट पार्ट, हेडिंग दीजिए डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी. हाँ, ये लिखना है. डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी में सबसे पहला हम लोग लिखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक, और इसके बगल में लिखिएगा ईडी या ईपी. ईडी रिप्रेजेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईपी इज प्राइस इलास्टिसिटी. वॉट एवर यू वांट टू राइट, वन इज ओके. राइट बोथ फॉर द फर्स्ट वन. इक्वल टू 0, देयर इज नो इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या ईपी इज प्राइस इलास्टिसिटी, बोथ विल वर्क. महत्व अंदर में एक बार लिख फिर समझाता हूं. There will be no change in quantity demanded at any change in price. There will be no change in quantity demanded with any change in price. With any change, there will be no change in quantity demanded with any change in price. ED is elasticity of demand. For Mr. Kejriwal, it means absolutely something else. Oh, ये जोक समझे नहीं आप. मिस्टर केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया था. स्टिल नहीं समझे, कोई बात नहीं. नॉट अ गुड डे. समझे? ओ, यू आर केजरीवाल सपोर्टर क्या? अच्छा, ये डायग्राम को नोटिस करिए ना. हाँ हाँ, लिकर गेट. 0 पे भी 5 लेंगे. सी वाई एक्सिस पे भव्या प्राइस होता है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी. 0 पे भी 5 लेंगे, 100 पे भी 5 लेंगे, 1 करोड़ पे भी 5 लेंगे. 0 पे भी 5, 100 पे भी 5, 1 करोड़ पे भी 5. पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा. बना लीजिए. कुछ नंबरिंग नहीं देना, बस ये डायग्राम बना लीजिए. एक्सिस में प्राइस क्वांटिटी लिख दीजिएगा. यहां प्राइस, यहां क्यूडी. डन. नेक्स्ट लिखिए प्लीज, परफेक्टली इलास्टिक. पहले लिखते हैं फिर डायग्राम पे बात करते हैं. With the slightest change in price, with the slightest change in price, quantity demanded will either become 0 or infinity. Krishna, tell me when will it become 0 and when will it become infinity? Think about it and answer. With the slightest change in price, क्वांटिटी डिमांडेड विल आइदर बिकम 0 और इट विल बिकम इन्फिनिटी. एक टाइम पे वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा या तो 0 पे चला जाएगा. कब? दाम बढ़ने पे 0 हो जाएगा, और अगर हल्का सा दाम गिर जाए तो अनगिनत. बोल रहा है कि राजदीप जो है 100 रुपए में 1 लाख यूनिट लेता था. 101 रुपए में बोल रहा है मैं एक भी नहीं लूंगा, और अगर ये गिर गया होता तो मैं अनगिनत लूंगा. मतलब ये इतना सेंसिटिव है. दाम बढ़ने पर सर लॉ ऑफ डिमांड हैज टू वर्क ना. तब तो एक्सेप्शन हो गया, तब तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम किया. इलास्टिसिटी इज प्योरली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमांड. इसलिए चालू किससे किया? व्हाट वाज द contribution I wanted from Yashvi Clinton and the Tanvi? Law of demand. कि एक्सेप्शन नहीं है, अदर थिंग्स कांस्टेंट है, तब जाके दाम गिरेगा तो क्वांटिटी को बढ़ना मैंडेटरी है. समझ पा रहे हैं सर? तो ध्रुव का क्वेश्चन समझिए भैया. सोचिए अगर ऐसा ही इलास्टिक टाइप का आदमी है तो 101 पे इन्फिनिटी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड नहीं तोड़ सकते ना. प्राइस राइज क्यूडी फॉल, प्राइस फॉल क्यूडी राइज. तो 0 कब होगा? जब दाम बढ़ेगा.
अनगिनत पे कब जाओगे? जब दाम गिरेगा। क्लियर है सर? इसका डायग्राम ना काफी कंफ्यूजिंग है। देखिए प्रूव कर पाते हैं कि नहीं। ये प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है। श्रेष्ठ ना 100 रुपये में कभी 5 ले लेता था, कभी 7 ले लेता था, कभी 10 ले लेता था। कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं था उसका, अलग अलग दाम पर अलग अलग लेता था, मतलब एक दाम पर सॉरी अलग अलग क्वांटिटीज लेता था। अचानक से 99 हुआ ना, 0 नहीं सर, इन्फिनिटी। तो कोई कर्व ही नहीं है। बोल सकते हैं क्यों? इन्फिनिटी मापा नहीं जा सकता। सॉरी 101 पे अगर चले गए तो 0 पे चले जाएंगे, 0 को प्लॉट नहीं किया जाता। समझ रहे हैं? नहीं कर, इसलिए एक पॉइंट है, ये डायग्राम समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं तो 90% बच्चा ना यहां पे छोड़ के आ जाता है, ये नहीं दिखाता है। गलत हो गया ना। यू डिड नॉट शो द चेंज इन प्राइस, ये करके अगर आप आ गए एंड यू डिड नॉट शो इट बिकमिंग 99 और 101, यू आर रॉन्ग। With a slightest fall, you are going to either infinity. With the slightest rise, you are either going to 0. नहीं, P1, P2 चलेगा। प्लॉट करना आप कर दो, पर आपको नंबर के हिसाब से स्केल नहीं डिराइव करना होगा कि 1 सेंटीमीटर इज 120, तब तो पेपर ही नहीं कंप्लीट हो गया। वान्या पूरे इकोनॉमिक्स में 150 डायग्राम है। अगर हम लोग प्लॉट करने लग गए सारा डायग्राम तो पेपर ही नहीं खत्म होगा। और ना कोई ग्राफ पेपर है हमारे पास, ना कॉपी में करना है जो करना है, मतलब नॉर्मल रूल्ड पेपर में। सो वी डोंट यूज प्रॉपर प्लॉटिंग व्हेन वी ड्रॉ डायग्राम्स। वी अंडरस्टैंड द शेप ऑफ इट एंड वी डायरेक्शन ऑफ इट, कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। 4 ही तो डायग्राम हो सकता है पूरे इकोनॉमिक्स में। यहाँ तो ऊपर जा रहा है भाई, यहाँ तो नीचे जा रहा है, यहाँ तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यहाँ तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और तो कोई कर्व ही नहीं है। अब ऊपर के भी अलग अलग शेप हो सकते हैं, पर जा तो सारे ऊपर रहे हैं। नीचे के अलग अलग शेप हो सकते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, लीनियर, जैसे पीपीसी था कॉनकेव। इंडिफरेंस कर्व बोल के एक चैप्टर आएगा, उसमें आईसी होगा कॉन्वेक्स। ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है तो एक ही डाउनवर्ड स्लोपिंग, पर उनके नेचर अलग अलग है। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक, बना लिए हैं। थर्ड लिखिए, यूनिटरी इलास्टिक। क्या होना चाहिए इसके बगल में? ईडी इक्वल टू 1। पहले लिखते हैं फिर डायग्राम पे जाते हैं। हियर द परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, हियर द परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, चेंज को ना सार्थक अब जब से लिखोगे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी लिख दियो, काटो मत, अभी बहुत बार यूज होगा ना, फ्यूचर में भी यूज करेंगे। जब भी चेंज शब्द बोलोगे तो ट्राइंगल से डिनोट करना, ठीक है? ट्राइंगल है वो, डी नहीं है। इतना गंदा ट्राइंगल नहीं बनाए हम, ठीक है? क्या लिखे? सॉरी, हियर द परसेंटेज चेंज इन क्यू डी is equal to the percentage change in price. Here the percentage change in QD is equal to, मतलब 6 थप्पड़ का जवाब 6 थप्पड़ है। आपके जीवन में भी ना ऐसे लोग होंगे जो मतलब जस्टिफाइबल रिस्पॉन्स देते होंगे। तो घर में आग लग गया है, एक आदमी होगा, कोई बात नहीं, अपने आप बुझ जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। एक आदमी माइकल स्कॉट जैसा होगा। अगर आप ऑफिस देखते हैं, हल्का सा धुआं निकलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू सीन द ऑफिस? एनीबडी? डू यू रिमेंबर दैट एपिसोड वेयर ड्वाइट ट्राइज टू स्टार्ट अ फायर? वो चिल्लाता है, कोई पटाखा फोड़ दिया, ठीक है, बोलता है द फायर इज शूटिंग एट अस, ठीक है, मतलब ही बिकम्स मैड, धुआं निकल रहा है बस, एंड ही गोज क्रेजी। एक्सट्रीम रिएक्शन है ना। लॉजिकल क्या है? कॉल द फायर ब्रिगेड। दूसरा, उससे ज्यादा फायर ब्रिगेड को बोल के पैनिक भी करेगा, ग्रेटर देन 1। कोई उससे कम रिस्पॉन्स करेगा। मैं तो एक ही एग्जांपल देता हूं यार। यू नो, वन ऑफ माय प्राउडेस्ट थिंग्स इन स्कूल लाइफ, एंड यू विल बी एबल टू रिलेट दिस टू द बेस्ट हियर, द स्कूल दैट आई हैव स्टडीड फ्रॉम,
St. Thomas's Boys School has a reputation of having very bad language. Very bad language. तो मतलब इतना खराब भाषा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते. मतलब आप लोग भी देखें, आई एम अवेयर दैट आप लोग भी यू यूज सर्टन वर्ड्स एंड एवरीथिंग एंड इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर normal conversation with Mirzapur and Sacred Games and all these TV shows becoming day-to-day consumption of entertainment. I understand that. पर उस टाइम पे नहीं था यार. उस टाइम पे लोग नहीं इतना ओपनली गाली देते थे. मतलब मूवीज़ में नहीं होता था ऐसा, शोज़ में नहीं होता था ऐसा. मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लेक्स वॉज 14 years ऑफ माई एजुकेशन. आई हैव नेवर अब्यूज्ड एनीबडीज पेरेंट्स और सिस्टर और रिलेटिव्स. दैट वाज माई बिगेस्ट फ्लेक्स. कोई और अगर आप सेंट थॉमस बॉयज स्कूल में पढ़े हैं, आप गाली बहुत खाए हैं. मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे मैं कितना गाली खाया हूँ. मतलब मेरा कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ा है लोग. एवरी सिंगल रिश्तेदार के एवरी सिंगल बॉडी पार्ट पे गाली खाया हूँ मैं. ऐसा कोई गाली बचा नहीं होगा सेंट थॉमस बॉयज स्कूल में जो मैं खाया नहीं हूँ. पर लेकिन मैंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, कभी नहीं, नेवर. और 5 दिन तक और बोले वो लोग, छठे दिन पे बंद कर दिया. यार ये तो बोलता ही नहीं है. आई अंडरस्टूड द गेम कि लोगों को मजा आता है तुम गाली दो फिर मैं गाली दूं, है ना. दैट इज द गेम व्हेन पीपल अब्यूज. दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. सी इन रेज यू कांट कंट्रोल, आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. पर फालतू में फॉर नॉनसेंसिकल अगर आप किसी को गाली दे रहे हो, यू आर ओनली डूइंग इट टू गेट अ रिएक्शन फ्रॉम इट. एंड द बेस्ट थिंग इज इफ यू कैन डिप्राइव देम फॉर विद दैट रिएक्शन. तड़प उठेगा. पहले तो 3-4 और गंदा गाली बोलेगा कि इससे नहीं को गुस्सा आया, चलो और थोड़ा सा, है ना, और बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व करते हैं. पर अगर आप चुप रहे ना, उसके साथ हंसो. हाँ, बहुत क्या क्रिएटिविटी है यार. ये संभव है, हम तो सोच भी नहीं सकता था. मानना पड़ेगा. माइंड ब्लोइंग यार. कहां से सीखा? मतलब घर पे चेक करके आया था क्या? मतलब कहां से सीखा? पर मुंह से कभी गाली नहीं निकला मेरा. आप समझ रहे हैं मैं पॉइंट क्या है? देयर वॉज नो रिएक्शन. और मेरा फ्रेंड ना, उसको बहुत चिढ़ मचता था, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. कोई मेरे को गाली देता था वो आगे बढ़ जाता था, मारपीट पे उतर आता था. 3-4 बार मेरे लिए प्रिंसिपल ऑफिस में गया है वो. कुछ ज़्यादा ही. आज भी लाइफ में ना वो इतना अग्रेसिव है, इतना मारपीट में बिलीव करता है. उसको कम से कम अब मैं 4 बार उसको पुलिस थाने से छुड़वा के लेके आया हूँ. रैंडम रोड रेज हो जाता है. मतलब वेरी सेंसिटिव. दिल का बहुत अच्छा है, पर इतना अग्रेसिव, इतना मतलब सेंसिटिव है कि कंट्रोल नहीं कर पाता अपना इमोशन. वो परफेक्टली इलास्टिक है. और आप देखेंगे लाइफ में अगर आपको कोई गधा बोल रहा है तो आप रिस्पॉन्ड गधा से कर रहे हैं. इक्वल रिएक्शन है. अगर आपको कोई गधा बोल रहा है उसको गधा, सुअर, कुत्ता और भी बोल दिया. रिलेटिवली इलास्टिक हो गया. हाँ, रिलेटेड टू अब्यूजेस. हाँ, मारपीट पे उतर आओगे अगर, हाथ लगाओगे अगर, फिर क्या होगा हमको नहीं पता. पिट जाएंगे लेकिन एक तो मारेंगे. ठीक है, मार खाएंगे कोई बात नहीं, पर आई एम नॉट गोइंग डाउन विदाउट अ फाइट. मारा था यार, 20 लोग मिलके मारा था सेंट थॉमस स्कूल के बाहर. सर फोड़ दिया था मेरा. दैट विल बी अ स्टोरी फॉर सम अदर टाइम. ये ट्रू है. हॉस्पिटलाइज हुए थे हम. 12 लोग को टीसी मिला था सर, क्लास 12 में, बोर्ड ईयर, दिसंबर मंथ में. हाँ, बोलो लड़ा नहीं सर, मार खाया था. वो हिंदी पिक्चर में होता है 20 लोग से लड़ना. किस डायरेक्शन से कौन मार रहा है हमको, तो हम तो ये कर रहे थे, हम तो लड़ नहीं रहे थे. तो सर सेंट थॉमस बॉयज स्कूल में ना कोई भी छोटा बात होता है ना, एक ही चीज, ते बाहर मिल. कोई कुछ नहीं, कोई फालतू सा चिंदी सा बात था, ईगो पे लग गया किसी का, तो हाँ, तो ले आए अपने आसपास के जितने लोग थे और फिर हो गया. उसके बाद वो उस टाइम पे जो आपकी राइटर हैं मैम उषा एंड्रूज, तब प्रिंसिपल थी मेरी. फ्रैंक की जो किताब लिखी हैं आप उनका देखिए, अगर पढ़ेंगे तो वो सेंट थॉमस स्कूल की प्रिंसिपल थी. एंड शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी. तो हम सीधा गए, सर से खून वून निकल रहा है, ठीक है, यहाँ मुंह फूला हुआ है पूरा, सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में घुस गए. मैम लेके गई हमको CMRI, क्योंकि हमारे स्कूल से एकदम बगल में था. तो वहाँ पे एडमिट हुए. मेरे पापा मम्मी आए, मेरे पापा ले आए क्योंकि मेरे पापा का सिक्योरिटी का बिजनेस है.
तो मेरे पापा 100 लोग को ले आए, बोले कौन मेरा बेटा को हाथ लगाया, और मेरी मम्मी को मेरा हालत देख के तरस नहीं आया, पता है क्या बोल रही है, एक एक करके आओ, हम अभी लड़ पाएंगे। बोला मम्मी कल का बोल देते यार, अभी कौन लड़ेगा। मतलब सो वो आपको कभी और बताएंगे हम। यहाँ पे आ जाते हैं रिलेटिवली। अच्छा इसका ग्राफ नहीं हुआ, ये ना एक बहुत स्पेशल ग्राफ है। दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोली। आई टेल यू, अब मैथ में भी करेंगे इसको, पैराबोला एंड हाइपरबोले। इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोली एंड इसका ना बहुत बड़ा फीचर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व्स इन ज्योमेट्री is this curve. If you Google about this curve, you will come to know that the area on all points is equal. What they're trying to tell you here, चिराग, इस P1 and Q1 में जो gap है सर, वो same है. If you draw a rectangular hyperbole, it means that the distance between P1 and Q1, change in percentage of price and quantity is the same. जितने से क्वांटिटी में परिवर्तन आएगा उतना सा प्राइस में भी परिवर्तन आएगा। समझ पा रहे? सो दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। राजदीप, यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इक्वल टू 1 लिखवाए नहीं थे क्या इसमें कुछ? अच्छा, कर्व का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोली। ये आप मैथ में करेंगे सर। पाठक सर पे अगर आप जाते हैं तो पैराबोला हाइपरबोला का एक पार्ट आएगा। हाँ, आप लोग का नहीं है, हम लोग का तो था। तुम्हारा प्योर मैथ्स नहीं है क्या? ओ, साइंस का मैथ अलग हो गया अब। ये नहीं करना चाहिए था। बात वो नहीं है यार। वी आर फंडामेंटली एडमिटिंग दैट साइंस का मैथ्स हमसे टफर है। अगर आप बोल रहे हैं कि हाइपरबोला पैराबोला हटा दिया है, नहीं है, तो हमारा सेक्शन सी क्या है ना, मतलब चलिए। रिलेटिवली इलास्टिक पहले लिख लीजिए। 4th पॉइंट, रिलेटिवली इलास्टिक, the percentage change in quantity demanded, the percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price. The percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price. क्लिंटन, जिताना किसको है, प्राइस को कि क्वांटिटी को? विच हैज टू बी मोर हियर? ईडी ग्रेटर देन 1 इलास्टिक, द क्वांटिटी, प्राइस इज इन इलास्टिक एंड क्वांटिटी इज इलास्टिक. इफ क्वांटिटी इज विनिंग इट इज इलास्टिक, इफ प्राइस विन्स इट इज इन इलास्टिक. तो फिर क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए. सो वी विल ट्राई टू गेट अ कर्व which will cover more of the quantity demanded axis rather than the price axis. So what curve am I looking at, Yashvi? A steep curve or a flat curve? We are looking at a flat curve. जब भी आपको इलास्टिक दिखाना है ना, try to cover more of the x axis. I'll prove it to you. इस प्राइस पर ये क्वांटिटी आया, ये प्राइस पर ये क्वांटिटी आया. नोटिस करिए P1 और Q1 में बड़ा क्या आया? तो क्वांटिटी का रिस्पॉन्स प्राइस के रिस्पॉन्स से ज्यादा है, तभी वो सेंसिटिव है, इलास्टिक है. एंड सिमिलरली अभी बना देता हूं, लिखना बाद में. अगर स्टीप कर्व बनाऊंगा, वाई एक्सिस को कवर ज्यादा करूंगा, तो मेरा कर्व इन इलास्टिक आएगा. प्रूफ करके देखो. P1 और Q1 में ऑब्वियसली P1 का चेंज Q1 के चेंज से ज्यादा आएगा. इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? एक काम करते हैं, आज इतना ही करते हैं. ये मैं अगली क्लास में आपको लिखवा के विल डू द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी टुमारो.
आपका सैटरडे संडे का बैच है, तो आप लोग संडे आएंगे, नेक्स्ट वीक से चेंज कर देंगे। वो आपका मर्जी है, आप कोई भी टाइम पे आ सकते हो।